Hello student, good morning. Today we are going to discuss a very important topic, that is Kirchhoff's law. Before Kirchhoff's law, we have to knowledge about the कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. देखिए ये टॉपिक हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है, बट वी हैव टू नॉलेज अबाउट दिस. विदाउट दिस टॉपिक वी कैन नॉट डू द किरचॉफ्स लॉ. सो वी हैव टू नॉलेज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. Combination of a register. In combination of a register, there are two type of combination. One is the series combination. Second one is the parallel combination. Parallel combination. Okay. हम डायरेक्ट फॉर्मूले स्टडी करेंगे. सीरीज कॉम्बिनेशन में वेन एवर टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज मीन्स, हमने कैपेसिटर में भी बात की थी कि एक का आउटपुट एंड सेकंड वन इज इनपुट. सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इज V1 एंड अक्रॉस दिस इज V2. सपोज दिस वन इज R1, दिस वन इज R2 एंड द पोटेंशियल इज V. Okay, little descriptions. What is the net resistance? R will be equal to R1 plus R2. In this case, the current will remain same and the potential will different across the resistances. Okay, in parallel combination, you have to suppose that there are two resistors connected in parallel. What does it mean? It means whenever two devices are connected at the same potential. This is V volt, this one is R1, this one is R2. Now what is the difference between these two? In this, the current will different, in the current same, I1 and I2. Okay, the potential will remain same. What is parallel? Whenever the number of devices connected at same potential, whenever the devices connected through the same current. These are two identification of this series combination and parallel combination. ये complete कर लीजिए. Combination V will be same. What is the formula? Formula is 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Okay, this one is the series and parallel combination of a resistor. Now the topic, today's topic is Kirchhoff's law. Why we use the Kirchhoff's law? Whenever the circuit cannot explain or find the connected elements and the current and the property, you can say, through this law, combination of resistance, then we use the Kirchhoff's law. करते कहाँ पर यूज है इसको? आंसर है कॉम्प्लेक्स सर्किट. विथ सर्किट कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स मतलब, अब ये आपको समझ आ गया होगा कि इसकी जगह अगर ये रूल्स हमारे फॉलो नहीं हो पा रहे हैं टू फाइंड द करंट थ्रू आउट द रजिस्टर और द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, देन वी यूज द किरचॉफ्स लॉ. क्लियर? तो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं. किरचॉफ्स लॉ, चलिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन के चांस रहते हैं. देखिए, किरचॉफ्स ने टू रूल्स हमें बताए. फर्स्ट रूल ध्यान से समझिएगा. फर्स्ट रूल क्या, तो नाम हम लेंगे इसका फर्स्ट रूल. नाउ जंक्शन रूल, जंक्शन रूल, या फिर थर्ड नेम हम देंगे किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि केसीएल, किरचॉफ करंट law, KCL. Now it can be second rule and loop rule, या फिर थर्ड नाम हम देंगे इसका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ओके, अब हम जो स्टडी करके चलेंगे, एग्जाम में आपसे फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल या फिर किरचॉफ्स लॉ आ जाता है, तो आप तीनों में से समझ लेना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किरचॉफ फर्स्ट की,
अगर इसमें से सेकंड रूल, लूप रूल और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आता है तो यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमारा जो मोटिव रहेगा वो रहेगा KCL, हम जो प्रोनाउंस करेंगे, दिस वन इज KCL एंड दिस वन इज KVL, these are the short form, Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law. Student, before study these rule we have to some basic knowledge. Some basic knowledge means why we use these rules. We use these rules for the complex circuit. Suppose that this one is the potential V across the battery. Now this one is the resistor. One of the branch of the resistor is here, वन रजिस्टर इज हेयर। अब देखिए एक रेजिस्टेंस ये है, वन ऑफ द बैटरी इज हेयर, वन ऑफ द रजिस्टर इज हेयर। सपोज दिस वन इज E1, दिस वन इज E2 एंड वन ऑफ द बैटरी इज ऑल्सो कनेक्टेड अक्रॉस दिस एंड विद वन रजिस्टर। दिस वन इज द कॉम्प्लेक्स सर्किट। वेन एवर द सर्किट इज कॉम्प्लेक्स एंड दिस वन इज E3, R1, R2 एंड R3, R4 एंड R5। सपोज आपको बोल दिया गया फाइंड आउट द करंट थ्रू दिस R2 रेजिस्टेंस या फिर R3, R4 और R1। अब इसके अंदर 3 बैटरी कनेक्टेड है। अब ये क्वेश्चन सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से पॉसिबल नहीं है, तो हाउ यू विल यूज, तो हम कहेंगे कि हम किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। तो किरचॉफ्स ने 2 लॉ बताए, 2 लॉज। फर्स्ट वन इज किरचॉफ करंट लॉ, सेकंड वन इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ की हम बात करेंगे, फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए कि जंक्शन क्या होता है। तो 3 बेसिक डेफिनेशन, वन इज जंक्शन, जंक्शन फर्स्ट, सेकंड इज ब्रांच, थर्ड वन इज लूप। किसकी बात करेंगे हम? लूप की। तो स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन? जंक्शन क्या होता है? जंक्शन का मीनिंग क्या है? तो जंक्शन देखिए, जंक्शन का मतलब होता है वेन एवर मोर देन 2 वायर कनेक्टेड एट अ पॉइंट। क्या बात कह रहा हूं मैं? एक आदमी इधर से आ रहा है, जैसे घंटाघर, क्लॉक टावर इज द जंक्शन, उसको भी हम जंक्शन कहेंगे। या फिर रेलवे स्टेशन की हम बात करेंगे, हमारे यहाँ पे रेलवे स्टेशन है सहारनपुर में, दिस विल कॉल्ड जंक्शन बिकॉज नंबर ऑफ ट्रेन कमिंग एंड आउट। ऐसे होता है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक बलियाखेड़ी से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक रुड़की से आ रही है, एक शामली से आ रही है। तो मोर देन 2 ट्रेन कमिंग एंड आउट गोइंग, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। जहां पर कनेक्टिविटी मोर देन 2 वायर होती है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो कनेक्टिविटी ऑफ मोर देन 2 वायर, तो कनेक्टिविटी ऑफ वायर मोर देन 2 कॉल्ड जंक्शन। क्या कहेंगे हम उसको? जंक्शन। नाउ व्हाट इज द ब्रांच? तो इसमें कितने जंक्शन है सर्किट में? देखिए, अब देखिए, क्या एक जंक्शन है? नहीं, ये एक जंक्शन है, इसको मैंने J1 कहा। दिस वन इज वन ऑफ द जंक्शन, इसको मैंने J2 कहा। एक जंक्शन ये है, इसको मैंने J3 कहा। ये जंक्शन नहीं है, दीज आर ओनली टर्निंग बिकॉज वन वायर इज कमिंग एंड टर्न गोइंग टू लाइक दिस। ओके, दिस वन इज एक वायर ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, मोर देन 2 वायर। तो दीज 3 जंक्शन, these 3 points are called junction, J1, J2 and J3. Now branch. What is the branch? Branch means connectivity of 2 junction. क्या वर्ड यूज किया मैंने? connectivity of 2 junction. तो जब हम 2 जंक्शन को कनेक्ट कर देते हैं थ्रू वायर, दैट इज कॉल्ड ब्रांच। उसमें चाहे कितने भी रेजिस्टेंस हो, कितने एलिमेंट हो, कनेक्टिविटी ऑफ 2 जंक्शन इज कॉल्ड ब्रांच। कनेक्टिविटी of 2 junction, connectivity of 2 junction called branch, right? तो how many branch in this circuit? मैंने कहा 2 जंक्शन के बीच की कनेक्टिविटी। एक जंक्शन J1 है, अब J3 पर हम कैसे जा सकते हैं? ऐसे 1 ब्रांच, यहां से नहीं जा सकते। अब हम देखेंगे कितनी ब्रांच है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, कोई और एक ब्रांच ये भी हो गई। तो 1 2 3
and 4. There are 4 branch. कितनी branch है in the circuit? In given circuit there are 4 branch. कितनी branch है यहाँ पर? 4 branch. Now throughout the branch the current remains same. ये ध्यान रखिएगा. तो throughout the branch current remains same. करंट क्या रहेगा हमारा? सेम. नाउ द स्टूडेंट थर्ड वन इज अ लूप. लूप क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लूप? इसको ध्यान से समझिएगा. लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ. लूप से पता लग रहा है क्लोज्ड पाथ. तो क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस पाथ. हम ए पॉइंट से चलते हैं, ये कॉर्नर है एक रूम का, इस कॉर्नर पे हम इधर से जाए या फिर इधर से घूमकर ऐसे आ जाए, दैट इज कॉल्ड लूप. ए बी सी डी ए, क्या वर्ड यूज किया मैंने? ए बी सी डी ए. या फिर मैं कह रहा हूं ए डी सी बी ए, ऐसे हम चल रहे हैं. मैंने कहा ए बी सी डी ई एफ. तो व्हाट इज द लूप? लूप क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस पाथ. क्या वर्ड यूज करेंगे हम यहां पर? क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस path is called loop. एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं. एग्जाम्पल इन दिस सर्किट ए बी सी डी ए. पहला लूप क्या हुआ हमारा? ए बी सी डी ए. सेकेंड लूप क्या हुआ हमारा? ए एफ ई डी. सेकेंड लूप क्या हुआ? ए एफ ई डी. ए डी. और एक लूप हुआ हमारा बी सी ई एफ बी. बी सी ई एफ डी. दीज आर द 3 लूप इन द गिवन circuit. Okay student, this one is the basic formula or basic definition, junction, branch and loop. Now what is the Kirchhoff first law? एक मिनट. What is the Kirchhoff first law? Have you copied it? ओके. किरचॉफ फर्स्ट लॉ का मतलब क्या होता है? नाम से पता लग रहा है हमको, किरचॉफ करंट लॉ. व्हाट डू मीन बाय किरचॉफ करंट लॉ? मैंने कहा ये एक जंक्शन है. जंक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं. एक वायर ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे. एक करंट ये आ रही है, एक करंट ये आ रही है, एक बाहर जा रही है और एक फिर इनसाइड आ रही है. दिस वन इज जंक्शन. एक हम कह लेते हैं, एक और आउट जा रही है. राइट. इसको कहा हमने I1, I2, I3, I4, I5. दिस वन इज जंक्शन. इसका नाम दिया हमने जंक्शन. ओके. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, द algebraic sum of all the current at a junction always be 0. What is Kirchhoff current law? Algebraic sum of all the current at a junction is 0. एल्जेब्रिक सम की मैं बात कर रहा हूँ. इट मीन्स समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0. अब देखिए, जो हमारी इनकमिंग करंट रहेगी, यानी कि टुवर्ड्स द जंक्शन, यू हैव टू टेक दैट पॉजिटिव. आउटगोइंग करंट मीन्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, यू हैव टू टेक नेगेटिव. तो पॉजिटिव I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0. तो I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5. दिस वन इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ. द एल्जेब्रिक सम of all the current at a junction is 0. Summation I is equal to 0. This one is the formula, student. Now we will discuss some of the numerical related to this topic and start the next second rule in next lecture. Okay, have a nice day.